Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School. And in this video, we are going to see Infosys Placements Preparation Guide. Okay, so hopefully आप लोगों ने Infosys कंपनी का नाम सुना होगा. So I'm going to tell you in next few minutes how what are the steps, what are the following processes, and how you can prepare for Infosys placements. Okay, and before this, let's just see what is Newton School. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is Pay After Placement program, okay, under which they have different courses for you, and they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer. And after that, not only this, they will also get you placed in these different companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's. So they have tied with almost 150 plus companies of India, and they are closely working with those companies. And once they will teach you for 6 months, and you can also see here that application for full stack development course October batch is open. So if you will apply for this batch, they will teach you for 6 months, they will make you a full stack developer, and after that they will get you placed in these companies. And not only this, they have under their Pay After Placement program, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies, and for minimum 5 lakh of CTC. Okay, which is the best thing about this program. So if you want to apply now, so just go to newtonschool.co and apply now in newtonschool.co as soon as possible. Their second program for you is Launchpad Initiative. If you want to start for free, if you want to start learning for free, okay, like they have different courses for you under their Launchpad Initiative, and you can start learning for free. Just come to their website, log in or sign up for free and start learning. They have different courses like for computer science core subjects, OS, DBMS, CN, and OOPS, and for competitive programming, for different languages, for everything they have courses. Okay, so just come and start learning. You will also get certificates after completion of courses, and they also have their personal ID in which you can perform and practice coding parts. Okay, and there are regular coding contests also, like you can see here. So you can participate in these coding contests, and you can win exciting cash prizes and referrals to big companies. Okay, now at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this YouTube channel where we are placing videos every day, and these videos are absolutely for free. And we have different playlists like for dynamic programming, for DSA, for C++, for JavaScript, and everything is absolutely for free. If you are preparing for online assessment of any company, you can also see this recent playlist under which I am explaining important and standard problems which are going to be asked in your interviews round or in online assessments round. Okay, now let's just start with today's video. And in today's video we are going to see how you can prepare for Infosys placements. ओके, सो कैसे इसके डिफरेंट राउंड होते हैं, कहाँ से कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं कंपनी में, उनका कितना CTC होता है, एवरीथिंग अबाउट इन्फोसिस प्लेसमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहला तो ऑब्वियसली आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने वाले हो. ठीक है, तो डिफरेंट रोल्स जो इन्फोसिस कंपनी में होते हैं फॉर फ्रेशीज. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स. By freshers I mean 2022 pass outs. Okay, so उनके लिए कौन कौन से different roles होते हैं. So they, for freshers there are 3 different roles in this company, and first is system engineer, the second is system engineer specialist, or DSE also. You can say this profile is for DSE also, digital specialist engineer. Okay, and third is power programmer or specialist programmer also. अब थोड़ा नाम चेंज हो गया. ठीक है, तो 3 प्रोफाइल्स हैं. उनकी सैलरी या CTC तुम उनके आगे देख सकते हो. फर्स्ट इज 3.5 LPA, सेकेंड इज 5.5, एंड देन 8 LPA. ओके, 8 LPA. तो अब इनका ऑर्डर में ऑब्वियसली इनका CTC का ऑर्डर इनका ही ऑर्डर होगा. ठीक है, तो सिस्टम इंजीनियर थोड़ी मोर फ्रेशी प्रोफाइल होती है. देन DSE आपकी थोड़ी सी, इसका प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है कंपेरेटिवली टू सिस्टम इंजीनियर. एंड फिर पावर प्रोग्रामर, इसका इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टफ होता है. ठीक है, एंड दैट्स वाई ऑब्वियसली देयर CTC इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर. ओके, तो ये 3 प्रोफाइल होती हैं. अब इनका किस किस बेसिस पे टेस्ट होता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो, ये देखते हैं. इन्फोसिस के रिक्रूटमेंट्स का ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया.
तो ऑब्वियसली राइट नाउ एज आई टोल्ड यू आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशीज 2022 पास आउट्स, ठीक है। तो हर ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता रहता है एंड दैट इज़ नॉट एन इशू। मैं इस बार के पास आउट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली हर कंपनी में होती हैं तुम्हारी, ठीक है। 10th 12th और बाय तुम्हारा बीटेक का मिनिमम जो होना चाहिए वो है 60%, 60 एंड 68 और 6/10 CGPA SGPA, ठीक है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस प्लेसमेंट ड्राइव, ठीक है। सेकेंड थिंग, डिग्री एंड स्ट्रीम्स। कौन कौन सी डिग्री तुम बीटेक कर रहे हो या फिर MCA कर रहे हो या फिर MTech कर रहे हो, ठीक है, BE कर रहे हो, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज प्लेसमेंट ड्राइव। सेकेंड, बैकलॉग्स। बैक के बारे में बात करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बैक अलाउ कर देती हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस एंड इफ यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस प्लेसमेंट ड्राइव, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी होना ही चाहिए, एलिजिबल होने ही चाहिए। तुम राइट नाउ सपोज तुमने एग्जाम्स दे दिए, सब हो गया, बट आफ्टर दैट जब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, अगर तुम्हारी कोई भी एक्टिव बैक है या फिर तुम्हारा कोई भी ये एलिजिबिलिटी पास नहीं हो रही है, you will not be eligible for current role। अदर डिटेल्स तुम्हारी क्या हो सकती हैं? कैंडिडेट कहीं भी विलिंग होना चाहिए शिफ्ट होने के लिए एंड कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एज रिक्वायर्ड बाय इन्फोसिस, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस, कंपनी तुम्हें जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए बोलेगी यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ओके फाइन। नाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मोस्टली जनरली ऑल द कंपनीज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होता है। सबसे पहला एक ऑनलाइन टेस्ट, राइट नाउ पैंडेमिक के वजह से ऑनलाइन टेस्ट होने लग गया, अदरवाइज इफ़ कंपनी तुम्हारे कैंपस में विजिट कर रही है तो ऑफलाइन टेस्ट होगा ऑब्वियसली लैब्स में, अदरवाइज कुछ कंपनीज में ऑन साइट टेस्ट भी होता है, ठीक है। कुछ सेंटर्स होंगे तुम्हें वहाँ पे जाके टेस्ट देना पड़ेगा, और कुछ कंपनीज के अपने ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट या फिर ऑनलाइन असेसमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो जनरली इन्फोसिस का तुम्हारा 2 राउंड होते हैं और 3 राउंड यू कैन से। फर्स्ट इज ऑनलाइन टेस्ट, ओके। अब उस ऑनलाइन टेस्ट में आएगा क्या क्या एंड सिलेबस फॉर दैट ऑनलाइन टेस्ट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस वीडियो ओनली, ओके। एंड सेकेंड राउंड इज टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू, ओके। तो जनरली टेक्निकल और HR इंटरव्यू एक ही राउंड में हो जाता है कंप्लीट, बट देयर कैन बी 2 सेपरेट राउंड्स फॉर दिस ऑल्सो, ओके। एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन कंपनी, लाइक अगर उनके पास टाइम है दे कैन क्रिएट 2 separate rounds, otherwise they can do that in only single round also। तो टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू, सो इसमें क्या पूछते हैं ये भी हम we will talk about this later on in this video। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 राउंड्स होते हैं, एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट एंड टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू। नाउ एग्जाम्स वाया विच इन्फोसिस हायर, बेसिकली अभी तक तो तुम्हें सब जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अब तुम्हारे डिफरेंट एग्जाम्स तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो इन्फोसिस में। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑब्वियसली इफ़ इन्फी, शॉर्ट फॉर्म में इन्फोसिस को हम लोग इन्फी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फी विजिट्स योर कैंपस, ओके। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे कैंपस में विजिट कर रही है एज कैंपस हायरिंग प्रोग्राम तो यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई फॉर दैट एंड एलिजिबिलिटी तुम्हें उसी में पता चल जाएगी अगर कैंपस हायरिंग है, ठीक है। तो कैंपस हायरिंग में ऑब्वियसली वही होता है तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट और टेक्निकल इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। सेकेंड, उसके 2 प्रोसेस और होते हैं, ऑफ कैंपस हायरिंग यू कैन से, ठीक है। ऑफ कैंपस हायरिंग में उसके 2 नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, दैट इज हैक विद इन्फी एंड इन्फी TQ, ठीक है। ये 2 तुम्हारे एग्जाम्स हैं। अगर इन दोनों एग्जाम्स तुमने दिए और इन दोनों एग्जाम्स में जो भी इनकी मेरिट लिस्ट होती है या क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया होता है वो तुमने पास कर लिया, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू हैव इंटरव्यू कॉल and you will be interviewed for different roles, that is system engineer and DAC and power programmer role, and simply you will get hired by Infosys, ठीक है। तो कुछ ये एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसमें तुम्हारे कैंपस में आके विजिट करेगी एंड फिर तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट तुम्हारा क्या होगा, सिंपली इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू, एंड तुम्हारे कैंपस के थ्रू ही तुम्हें सब कुछ न्यूज़ मिल जाएगी दैट यू हैज़ बीन हायर्ड बाय इन्फी, या फिर तुम्हें PPO ऑफर हो गया, ठीक है फाइन। सेकेंड थिंग, हैक विद इन्फी और इन्फी TQ अराउंड तुम्हारा अगस्त सितंबर में एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंड ऑफ कैंपस एग्ज़ाम होता है ये तुम्हारा, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस, एंड तुमने अगर इसमें क्वालिफाई कर लिया
तो तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगी और इंटरव्यू कॉल के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट हायर्ड बाय दिस कंपनी, दैट इज इन्फोसिस। ठीक है, फाइन। अब इन एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है, अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया एग्जाम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये जो टेस्ट पैटर्न है तुम्हारा, ये किस प्रोफाइल के लिए? ऐसी प्रोफाइल के लिए, सिस्टम इंजीनियर 3.5 लाख LPA। ठीक है, उसका मैंने बताया था थोड़ा फ्रेशीज में न्यू, बिल्कुल जो न्यूबी फ्रेशीज होते हैं उनके लिए प्रोफाइल होती है। ठीक है, लाइक उनका अकॉर्डिंग टू इन्फोसिस इन लोगों को राइट नाउ, ठीक है, टेक्स के बारे में थोड़ी मिनिमम नॉलेज है, दैट्स वाई। ओके, सो होता क्या एग्जैक्टली, उसके 5 सेक्शंस होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर्स एग्जाम। ओके, जो इस साल का एग्जाम है, दैट इज फॉर 2022 फ्रेशीज। हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस आ जाए नेक्स्ट ईयर के लिए और उसके नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहता है। फर्स्ट सेक्शन विल बी रीजनल एबिलिटी, सेकंड मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड एंड पजल सॉल्विंग। ठीक है, तो ये जनरल कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली अगर तुमने पढ़ी है एंड थोड़ा सा शार्प माइंड है, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। ठीक है, एंड यू कैन ईजिली गेट हायर्ड फॉर, यू कैन ईजिली गेट अ कॉल फॉर सिस्टम इंजीनियर्स रोल। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा टेस्ट सिलेबस या फिर पैटर्न था, ये था तुम्हारा सिस्टम इंजीनियर्स रोल के लिए 3.5 LPA। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट DSE एंड पावर प्रोग्रामर। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये दोनों जो प्रोफाइल्स हैं, दीज बोथ प्रोफाइल्स फोकस ऑन योर कोडिंग स्किल्स। ठीक है, एक एवरेज लेवल पे कोडिंग स्किल्स तुम्हारी होनी चाहिए। एंड होता क्या है, इनका एग्जाम कैसे होता है, अब उस पर टॉक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनका जो DSE एंड पावर प्रोग्रामर, ये दोनों जो प्रोफाइल होती हैं, इसमें तुम्हारा एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उस ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हारा कुछ 3 कोडिंग क्वेश्चंस या 2 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एंड कुछ उसके साथ बेसिक तुम्हारे एप्टी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, बेसिक एप्टीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड प्लस तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट और हैक विद इन्फी जो है तुम्हारा, जो हैक विद इन्फी है, ठीक है, ये जो हैक विद इन्फी है, इस हैक विद इन्फी में तुम्हारे खाली कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा जो हैक विद इन्फी नेशनल लेवल टेस्ट होता है, ये बेसिकली तुम्हारा कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। ठीक है, इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में तुमने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरिट में तुम आए, तो यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर पावर प्रोग्रामर रोल इंटरव्यू। ठीक है, तुम्हें 8 लाख LPA वाला इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। ठीक, अदरवाइज अगर तुमने एवरेज लेवल या फिर कंसीडरेबल लेवल पावर प्रोग्रामर से थोड़ा सा नीचे आ गए तुम, तो तुम्हें किसके लिए इंटरव्यू करने के लिए मिलेगा 5.5 LPA। ठीक है, तो ये दोनों प्रोफाइल्स हैक विद इन्फी के थ्रू तुम्हारी ये दोनों प्रोफाइल्स बनती हैं। ठीक है, फाइन। सेकेंड तुम्हारा जो टेस्ट होता है इन्फी-TQ। इन्फी-TQ में एग्जैक्टली क्या होता है तुम्हारा, जो मैंने अभी तुम्हें ये बताया था। ठीक है, इस तरह का कुछ पैटर्न बेस्ड एप्टीट्यूड रहता है उसमें कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं और तुम्हारा मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, ये सब के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एंड उसमें भी तुम्हारी मेरिट बनेगी। एंड अकॉर्डिंग टू योर मेरिट, लाइक अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सॉल्व, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व एंड तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें DSE प्रोफाइल और पावर प्रोग्रामर की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। ठीक है, अगर तुमने बहुत अच्छा अमेजिंग टेस्ट किया तो DSE पावर प्रोग्रामर, अदरवाइज DSE प्रोफाइल। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा DSE प्रोफाइल में तुम्हारे क्वेश्चंस या ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हैक विद इन्फी टोटल कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है और इन्फी-TQ में तुम्हारा जैसा मैंने पैटर्न अभी पहले बताया, ठीक है, ऐसा होता है। अब कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कोडिंग क्वेश्चन का लेवल बेसिक तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नॉट सो मच टफ लाइक तुमसे बाइनरी सर्च ट्री और ये सब पूछ लिया। तो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल एवरेज इन द सेंस तुम्हारे ग्राफ्स, ठीक है, और ग्राफ्स हो गया और तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन के गुड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एंड इफ तुम्हें ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए ऑब्वियसली अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, यू कैन सिंपली गो टू दिस प्लेलिस्ट, दैट इज ऑनलाइन प्रॉब्लम सेट, ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉब्लम सेट, एंड यू विल गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। फिर तुम इस लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो
कैसे क्वेश्चंस आते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है यू कैन जस्ट गो टू दैट प्लेलिस्ट एंड आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे इनके ऑनलाइन असेसमेंट्स में आते हैं. अब बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स में जब तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए उसके बाद इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं. हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़. इंटरव्यूज़ में बेसिकली सारी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ के लिए सेम टाइप ही प्रिपेयर करना होता है, बट ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा थोड़ा सा क्या होता है, 3 प्रोफाइल होती हैं, तो तीनों प्रोफाइल के लिए अलग अलग कैसे प्रिपेयर करना है ये देखते हैं. सिस्टम इंजीनियर रोल, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू प्रिपेयर वेर, बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रिपेयर नहीं करना है. ठीक है, अगर सिस्टम इंजीनियर की रोल है और तुम इंटरव्यू सिस्टम इंजीनियर का दे रहे हो तो उसी हिसाब से तुमसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. सेकेंड थिंग, अगर तुम डजेंट मैटर कि तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दिया, सारे क्वेश्चन बता दिए तो तुम्हारी प्रोफाइल अपग्रेड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. जब तुम कंपनी के अंदर चल जाओगे तो हो सकता है 6 मंथ्स या 1 ईयर में तुम्हारा एक टेस्ट हो और उस टेस्ट के बाद तुम्हारी प्रोफाइल अपग्रेड हो सकती है टू डीएससी और पावर प्रोग्रामर. ठीक है, तो कंपनी में जाने के बाद टेस्ट के थ्रू ही प्रोफाइल अपग्रेड होगी, इंटरव्यू से कुछ मैटर नहीं करता. सिस्टम इंजीनियर के रोल में तुमसे नॉर्मल कोर सब्जेक्ट्स और एप्टी के क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा. ठीक है, डीएससी के रोल में तुमसे कोर सब्जेक्ट्स प्लस तुम्हारे एवरेज लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस. ठीक है, एंड पीपी के रोल में तुमसे क्या, कोर सब्जेक्ट्स प्लस गुड लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस एंड डीएसए. ठीक है, डीएसए में तुम्हारा ग्राफ्स, ट्रीज, लिंक लिस्ट, एवरेज लेवल. ठीक है, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के ट्रीज, बाइनेस ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये सब कुछ नहीं. एवरेज लेवल तुम्हें एटलीस्ट इन सब के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, इन सब के बारे में. ठीक है, और इन सब के बारे में पता होने के बाद इनकी एल्गोरिदम्स भी, जो जनरल एल्गोरिदम्स हमें डीएसए और डा में पढ़ाई जाती हैं बीटेक के करिकुलम में, दैट इज़ तुम्हारी जनरल एल्गोरिदम्स जो भी होती हैं, प्रिम्स हो गई और डाइक्स्ट्रा हो गई और शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिदम्स हो गई, वो वाली एल्गोरिदम्स. ठीक है, ग्राफ्स में. और लिंक लिस्ट में तुम्हारा डिलीट अ नोड, इंसर्ट अ नोड और ट्रैवर्स लिंक लिस्ट एंड बेसिक तुम्हारा रिवर्स अ लिंक लिस्ट एंड डिलीट अ नोड फ्रॉम एनी गिवन पोजीशन और फाइंड द लूप इन द लिंक लिस्ट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, अगेन तुम्हें अगर क्वेश्चंस के बारे में कोई भी सजेशन चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करूं, यू कैन जस्ट आस्क मी इन, यू कैन जस्ट रेफर टू दिस प्लेलिस्ट ओए प्रॉब्लम सेट. ठीक है, और भी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, जस्ट गो एंड आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. तुम्हें अगर क्वेश्चंस में सजेशन चाहिए. ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर. सेकेंड थिंग यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद इंटरव्यूज़ तुम्हारे जैसे ही कंप्लीट हो गए. ठीक है, इंटरव्यूज़ कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली क्या होगा, तुम्हारे कॉलेज के थ्रू तुम्हारे कॉलेज में लिस्ट भेज दी जाएगी कि इतने इतने बच्चे तुम्हारे पीपी के लिए और डीएससी के लिए और एससी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा पीपीओ आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड थिंग, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं और क्या बताना चाहता था. सपोज इन एनी केस तुम पीपी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है, पावर प्रोग्रामर के लिए, और वहाँ पर तुम्हारा जो इंटरव्यूअर था, ठीक है, उसको लगा कि तुम पावर प्रोग्रामर रोल के लिए रेडी नहीं हो. सो होगा क्या एग्जैक्टली, वो तुम्हें डीएससी प्रोफाइल अलॉट कर देगा. ठीक है, तुम पावर प्रोग्रामर के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, दैट इज़ फॉर 8 LPA, बट तुम पावर प्रोग्रामर के लायक, मतलब करेंटली इंटरव्यू कर तुम्हारा लगा कि तुम उसके लायक अभी नहीं हो और तुम्हें और ब्रशअप करनी है अपनी स्किल, सो ही विल प्रोवाइड यू पीपीओ फॉर डीएससी प्रोफाइल और वो तुम्हें डीएससी प्रोफाइल अलॉट कर देगा. एंड इन एनी केस तुम डीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं एंड योर इंटरव्यूज थिंक्स दैट यू आर नॉट रेडी फॉर डीएससी राइट नाउ, ही विल रेफर यू फॉर सिस्टम इंजीनियर्स रोल. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इन्फोसिस प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड में देख ली. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट दिस अगेन. ठीक है, at the end, if you haven't visited Newton School yet, just go to newtonschool.co and check their October batch, as application for full stack development course is open right now. You can apply and get placed in any of these companies and get your placement assured for minimum 5 lakh CTC. And most amazing thing, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Also check Newton School Launchpad initiative, where you can start for free, start learning, get certificates after completion of any course. Use Newton School IDE for coding. Okay, and at the end, if you haven't visited Code Kitchen Newton School YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel
and get latest updates in different playlists. Thank you guys for watching this video.